today's video. In this video, we will learn about the second chapter of class 7th, water. Okay, water a natural resource. You know that about 3/4 of Earth's surface is covered with water. Of the total water available on Earth, 97% is found in ocean, 2% is ice on the peaks and the poles, and the remaining 1% is in river, lakes, ponds, and beneath the earth's surface. We use this water, underground water, by digging well. Water is also present in the atmosphere in the form of water vapor, mist and cloud. वाटर जो है 97% महासागरों में पाया जाता है, 2% जो है चोटियों पर बर्फ के रूप में, और शेष 1% जो है नदियों, तालाब, झील और अर्थ के सतह के नीचे है, जिसे अंडरग्राउंड वाटर मीन्स भूमिगत जल कहते हैं। हम इस भूमिगत जल का उपयोग जो है कुओं की खुदाई करके करते हैं। जल वायुमंडल में वाष्प, धुंध व बादलों के रूप में भी मौजूद है। This is the availability of water on earth. Okay, many substances like common salt and other minerals are present in ocean water in large quantities. Due to this, water becomes salt and saline. It cannot be used for drinking, bathing, washing clothes or irrigation. Water present as iceberg is pure, though it cannot be used usually. Of the total water available on earth, the quantity of water which can be used by human being is very small. पानी की उपलब्धता बड़ी मात्रा में समुद्र के पानी के रूप में मौजूद है। यह पानी जो है क्या होता है, खारा होता है। इसका उपयोग पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए नहीं किया जा सकता। हिमखंड के रूप में मौजूद पानी जो है शुद्ध होता है, बट इसे आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी पर उपलब्ध टोटल वाटर में से जो है मानव द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले पानी की मात्रा जो है बहुत कम है। ओके, नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग. वाटर इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लिविंग बीइंग. ऑलमोस्ट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज वाटर. वाटर सभी प्राणियों का अनिवार्य घटक है। ह्यूमन बॉडी में जो है 70% वेट जो है किसका होता है, वाटर का होता है। सी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चार्ट. द वाटर प्रेजेंट इन सर्टेन एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. 80% ऑफ एलिफेंट, 60% ऑफ प्लांट, 30% ऑफ ब्रेड, 95% ऑफ मिल्क, 90% of tomato, 85% of orange and 80% of potato. Okay, a healthy person needs about 2 to 3 liters of water for drinking daily. This is necessary for various processes of body for which water act as a medium. In the stomach, water is necessary for the digestion, absorption of food and for the circulation of the digested food in the body. Along with water, unwanted waste material are thrown out of the body in the form of urine and sweat. The temperature of our body is also controlled by sweating. Thus, we should drink plenty of water so that all the processes of our body run smoothly. Water is as important for plant as it is for animals. एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है डेली पीने के लिए लगभग 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यह शरीर में विभिन्न प्रक्रिया के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ओके, जिसके लिए पानी एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। इन द स्टमक, भोजन के अवशोषण और शरीर में पचा भोजन के संचलन के लिए यह आवश्यक होता है। पानी के साथ अवांछित वेस्ट मटेरियल को यूरिन और स्वीट क्या करता है, मीन्स पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है। ओके, हमारे शरीर का तापमान भी पसीने से नियंत्रित होता है। इस प्रकार हमें अधिक से अधिक मात्रा में जो है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाएं जो है सुचारू रूप से चल सकें। पौधों के लिए पानी उतना ही जरूरी है जितना कि जानवरों के लिए।
Okay. Next, drinking water. Water is fit for drinking is called a drinking water. Water from different sources can have dissolved salt, suspended particles and microorganisms. Some salt dissolved in water are necessary for our body, but if the amount of this is more than required, then they need to be removed from water before it is used. To get rid of harmful bacteria present in water, bleaching powder is added to it. In the same way, water from wells is made germ-free for use at home by adding bleaching powder or potassium permanganate in small quantities or chloride tablet. Water can also be boiled to make it germ-free. Nowadays, ultraviolet rays are also used to make water germ-free. To remove suspended impurities of water at home, we can use a filter fitted with ceramic candle. विभिन्न स्रोतों में जो है साल्ट, सस्पेंडेड पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। पानी में घुलने वाले कुछ साल्ट हमारे बॉडी के लिए जो है आवश्यक है, बट ये अगर अधिक मात्रा में हो तो हमें इन्हें उपयोग से पहले क्या करना चाहिए, निकालने की आवश्यकता होती है। ओके। हानिकारक बैक्टीरिया से छुटकारा पाने के लिए पानी में ब्लीच पाउडर मिलाया जाता है। इसी तरह कुओं के पानी को घर पर यूज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या फिर पोटेशियम परमैंगनेट या क्लोरीन टैबलेट मिलाया जाता है। वाटर को जर्म फ्री करने के लिए उसे बॉईल भी किया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेस मीन्स पराबैंगनी किरणों का भी यूज किया जाता है। घर पर इम्प्यूरिटीज को दूर करने के लिए सिरेमिक कैंडल से युक्त फिल्टर का यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मीन्स होता है आसुत जल। ओके। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरीज। Distilled water is obtained by evaporating water to product water vapor and then condensing this water vapor to get water. You can also obtain distilled water at home. यह पानी का जो है शुद्धतम रूप होता है। लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करने के लिए यह आवश्यक है। डिस्टिल्ड वाटर मीन्स आसुत जल को वाष्प बनाने के लिए पानी को वाष्पित करके प्राप्त किया जा सकता है और फिर पानी को वाष्पित करके प्राप्त करने के लिए इन जल वाष्पों को संघनित किया जाता है। आप जो है घर पर भी आसुत जल प्राप्त कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, वाटर ए यूनिक सॉल्वेंट। Many substances dissolve in water. This is why it is called the universal solvent. Material dissolved in a solvent are called solute. When a solute dissolves in solvent, the mixture is called a solution. Okay. कई पदार्थ पानी में जो है घुले होते हैं, यही कारण है कि इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट मीन्स विलायक में घुलने वाली सामग्री को सॉल्यूट मीन्स विलेय कहा जाता है। जब तक घोल एक विलायक में घुल जाता है तो इसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। ओके। Rainwater is distilled water. It does not contain mineral salt. However, due to atmospheric pollution, various gases dissolve in it. When this water flows over soil and rock, many types of mineral salts dissolve in it. The water reaches the sea through the river. In this way, the amount of mineral present in seawater increases and it becomes saline. In 1 liter of seawater, there are about 35 grams of salt. Common salt, sodium chloride, is the main salt present, but small quantity of sodium bromide, magnesium chloride, and potassium iodide are
also present. Okay. बारिश का पानी जो है डिस्टिल्ड वाटर मीन्स अशुद्ध जल है, इसमें खनिज नमक नहीं होता है। हालांकि वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण विभिन्न गैसें इसमें घुल जाती हैं। जब यह वाटर मिट्टी के ऊपर से बहता है और रॉक्स में कई प्रकार के मिनरल सॉल्ट इसमें घुल जाते हैं, यह पानी नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है। 1 लीटर जो है सी वाटर में 35 ग्राम जो है सॉल्ट होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड मेन कॉमन सॉल्ट होता है। स्मॉल क्वांटिटी में सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड जो है उपस्थित होता है। ओके, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नॉर्मली द सॉलिड फॉर्म of a substance is heavier than its liquid form, but this is not correct for water. You would have seen that in summer ice cube put in a glass of sharbat like soft drink float on its surface. Thus we can say that the density of ice is less than that water. आमतौर पर किसी पदार्थ का ठोस रूप जो है उसके तरल रूप से भारी होता है, बट यह वाटर के लिए करेक्ट नहीं है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में बर्फ के टुकड़े एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में डालकर उसकी सतह पर तैरते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बर्फ का घनत्व जो है पानी की तुलना में क्या है, कम है। ओके, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी पदार्थ का घनत्व जो है उसका द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। सोप इज यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग यूजुअली when soap gives a lot of lather with water, then that water is called soft water. Water from some sources that does not give good lather is called hard water. सोप जो है हम जो है बात करने के लिए उसका यूज करते हैं। जब जो है सोप वाटर के साथ जो है ज्यादा झाग देता है उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। एंड जो वाटर जो है सोप के साथ झाग नहीं दे पाता है उसको क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। ओके, water from some sources that does not give good lather is called hard water. Calcium and magnesium salt dissolve in hard water, react with soap to form insoluble substance, and hence soap cannot form adapted lather. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट पानी में घुल जाते हैं। अघुलनशील पदार्थों के निर्माण के लिए साबुन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और साबुन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है। ओके, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट, टेम्पररी हार्डनेस एंड सेकेंड, परमानेंट हार्डनेस। फर्स्ट, टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ bicarbonate of magnesium and calcium. This can be removed by boiling the water. अस्थायी टेम्पररी हार्डनेस मीन्स अस्थायी कठोरता जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। इसे पानी को उबालकर जो है हटाया जा सकता है। सेकेंड, परमानेंट हार्डनेस मीन्स स्थायी कठोरता। Permanent hardness is due to chloride and sulfate of calcium and magnesium salt dissolved in water. This hardness cannot be removed by boiling. Permanent hardness means स्थायी कठोरता जो है क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट के सल्फेट के कारण होता है जो पानी में घुल जाते हैं। इन्हें उबालकर जो है नहीं हटाया जा सकता है। ओके, these are the chapter water. So dear student, use water properly and save water. Okay, thank you.